Hello and welcome to Diya Online Science Academy. Let us begin the third lecture of chapter number 7, Alternating Current. In first and second lecture, we had seen that AC voltage was been applied to either just the resistive circuit or purely the capacitive circuit or to the purely inductive circuit. Now, in today's lecture, we will see that if that AC voltage is applied to a series circuit, in which series circuit, what will be connected in series? All three components, inductor, capacitor and resistor. They all will be connected in series and across them AC voltage will be applied. So the topic is AC voltage. AC voltage applied to series LCR circuit. Series LCR circuit. So the circuit would look like this. Circuit diagram would look like this. Inductor, then the capacitor and then the resistor are connected in series and some AC voltage has been applied. The supplied voltage, AC voltage is V, that will be equals to Vm sin omega t. Okay. So this AC voltage that has been supplied, that will get divided among all three components, because we know that in series circuit, whichever are the components, they will divide all the potential that has been given to them. In parallel, the voltage potential difference remains same, while in case of series it gets added, divide हो जाता है वो सब में. So V will get divided into this and this. Some would go to inductor, some would go to the capacitor, and some potential, some voltage will go to the resistor. So the total resistance V equals to supplied voltage V equals to VL plus VC plus VR. VL is the voltage or potential difference between two ends of an inductor. What that would be? That will be equals to L di by dt. VL is L di by dt. VC is Q by C. And between two plates, how much will be the potential difference? That will be equals to Q by C. And for R, potential difference across the two ends of a resistor will be equals to IR, right? So substituting all these three values into the equation of V, we have V equals to L di by dt plus Q by C and plus IR. This would be the equation of voltage supplied. Now what did we do when we were taking purely inductive circuit or purely capacitive or purely resistive circuit? We were actually finding out how much would be the current that is passing through the circuit, through the component at any instant, and for that we were deriving some equation. So basically we were deriving an equation for I, right? So here also we will do the same thing. So as to derive the formula for I, here you can see I is simply as I. In this term it is as a differentiation of with respect to t. Barabar? Here Q, in the form of Q it is there. So there are two methods basically to find out how much will be the current that is getting supplied across the circuit. So there are two methods. One method to solve this equation. To solve the equation, two methods are there. Which two methods are there? One is phasor diagram method. Phasor diagram method. And second is analytical method. Analytical method.
What is this phasor diagram? We had seen phasor is a rotating vector. It is actually not a vector quantity, because what were we representing on a phasor? We were actually plotting current. We were actually plotting voltage. But these quantities are not vector quantities. But then also we were representing them as some vector, rotating vector. So the quantities themselves are scalar, but we were representing it as the variable quantity with respect to time, because the voltage that is getting supplied is getting changed every time sinusoidally, and accordingly current will also get changed, right? So each and every time you will get different value of V and I. So obviously you will not get one value, but you can also represent it as some vector which is changing its value every time. So that's how we had represented V and I as rotating vectors, correct? तो इसके अंदर भी हम लोग we will take the help of phasor diagram. We will plot phasor diagram for LCR, series circuit. So if there is only resistor, we know how to plot phasor. If there is only capacitive circuit, then also we know. If only inductive circuit is there, then also we know. Now we will combine all three phasor diagrams into one, right? And then after from that we will find how much is the resultant, because we know how to add vectors. Vectorial addition we know, correct? If you don't know how to draw phasor diagram, you can go through first or second lecture. There it has been explained. Okay, here I'll be taking just simply कैसे भी ड्रॉ किया था वो जो ड्रॉ किया है वो हम लोग यहाँ पर सीधा ड्रॉ कर लेते हैं, right? So in case of resistive circuit, we had seen that it was there was no phase difference between I and V. So at some instant of time, I can say that V is like this, V is something like this, VR, and obviously I will be in phase with that thing only. उनके बीच कोई भी एंगल नहीं होगा, but value of I will get decreased by rth times. तो यहाँ पर ये मैंने उससे थोड़ा सा छोटा रिप्रेजेंट कर दिया, but essentially both of them should be in line with each other, because there is no phase difference between I and R in case of resistive circuit. Okay, so I would be like this. Then after VC was lagging, that is current was lagging in case of capacitive circuit by pi by 2. So by making some angle of pi by 2, I'll represent VC. And how about VL? VL was greater. VL was leading VR, बराबर? इंडक्टिव केस के अंदर वो पाई बाय 2 से लीड कर रहा था, करंट इज लैगिंग, वोल्टेज जो है ना, देखो करंट ये ही रहने वाला है, तो करंट से वोल्टेज ये लीड कर रहा है, करंट से इस केस में वोल्टेज लैग कर रहा है, इसलिए करंट के साथ यहाँ पर हमने लैगिंग और लीडिंग जो भी है सिनेरियो वो हमने प्लॉट कर दिया, ठीक है? आई तो हमारा यही रहने वाला है। अब थोड़े टाइम के लिए हमने जैसे ये VL एंड VC प्लॉट कर दिया, now for some time we will consider that suppose I is not there and I've just plotted the phasor diagram for the potential differences only, बराबर? तो VL, VC and VR all three are perpendicular, बराबर? VL and VC are in line with each other but opposite, ये एक ही लाइन में है बट ऑपोजिट है, तो फर्स्ट आई कैन टेक द रिजल्टेंट ऑफ VL एंड VC वेक्टर्स, बराबर? ये दोनों का वेक्टोरियल एडिशन हम लोग ले सकते हैं, तो एज अ रिजल्ट आई विल गेट अ फेजर लाइक दिस, आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस कि ये है यहाँ पर, और एक लाइन जो है वो कुछ इतनी आ गई विच रिप्रेजेंट्स VC माइनस VL, VC में से VL कट कर दिया, तो क्या बचा? इतनी चीज बची, that will give me VC minus VL, potential difference इतना बचा, and VR will for now we have taken it as unaffected, तो VR ऐसे आ गया. Now there is
angle of 90 degree between VR and the other vector. So if two vectors, अब ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर 90 डिग्री पे आ गए, अब हम लोग यहाँ पर इनका वेक्टोरियल एडिशन देते हैं। वेक्टोरियल एडिशन कैसे लेंगे? I can draw a parallel line and of equal length starting from the head of the first vector. ट्राइंगल मेथड के अंदर ये किया था। ट्राइंगल मेथड में एडिशन कैसे करते थे? We should start the second vector from the head of the first lecture. इसको हेड बोलते हैं, यहाँ पर टेल बोलते हैं। 11th का याद होगा आई गेस, बराबर। तो यहाँ पर ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, which represents VC minus VL. And if you join the tail of the first vector and head of the second vector, then that will give me the resultant vector. बराबर, ये मुझे resultant vector देगा। तो यहाँ पर मैंने ये 90 डिग्री पे है तो ये भी 90 डिग्री पर ही आएगा, ठीक है। आई मेरा जो है वो आई इसी के ऊपर रहेगा जो मैंने अभी रिप्रेजेंट नहीं किया है। तो ये VR मैं इधर लिख देती हूँ, ये VR रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाली जो लाइन है वो VC माइनस VL रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? रिजल्टेंट विल बी इक्वल्स टू रिजल्टेंट of VR and VC minus VL is R equals to, R नहीं लिखते अभी हम लोग, रिजल्टेंट सिर्फ लिखते हैं बिकॉज R यहाँ पर रेजिस्टर के लिए लिखा है इसलिए रिजल्टेंट नहीं लिखते। तो VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL स्क्वायर एंड इट्स रूट, ये आ गया। इतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं? क्लियर? तो रिजल्टेंट हमें मिल गया जो इसकी लेंथ है, ये होगा इसका जो भी पोटेंशियल है वो पोटेंशियल का रिजल्टेंट। सपोज उसको मैं Vm बोल दूं। Vm कब मिलेगा? ये V की वैल्यू मैक्सिमम, इसकी वैल्यू मैक्सिमम, इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी, ऐसे अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो। बिकॉज यहां से सप्लाइड जो होगा वो सप्लाइड फ्लक्चुएटिंग होगा, तो फ्लक्चुएशन में मैक्सिमम मैक्सिमम जो होगा वो वाली सिचुएशन अगर हम लोग कंसीडर कर ले तो ये चीज होगी। नाउ VR, V इक्वल्स टू एक्चुअली IR, बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं I मैक्सिमम इंटू R स्क्वायर प्लस VC प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था, इट इज एक्चुअली XCI और ये हो जाएगा XL इंटू I एंड इट्स, बराबर। VC क्या था? या तो IM क्या था? VM बाय XC इन केस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट। ये जो आया उसका नाम था कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये V बाय R जैसे ही रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो भी टर्म आता था 1/ओमेगा c, उस 1/ओमेगा c के बदले ऐसे पहले टर्म आता था और उसकी जगह पर हमने XC लिखा। तो दिस XC is getting multiplied with IM. So in place of VM we can write like this for कैपेसिटिव सर्किट। ये C लिखा है यहाँ पर कौन से टाइम पे? कैपेसिटिव सर्किट है तो। ये IM लिखा मतलब कौन से टाइम पे? इंडक्टिव सर्किट है तो हम लोग ये चीज ले रहे हैं, बराबर। वैसे ही IM इंडक्टिव सर्किट में क्या था? VM बाय XL। ये किसकी जगह पर लिखा था? VM बाय ओमेगा L। ये था इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्लियर? तो ये सारी वैल्यूज हमें मिल रही है यहाँ पर। नाउ IM all are there, same term IM is present everywhere, so we can take them out of the bracket, out of these squares. Afterwards it is also all the IM are under the square root, so if I take them out of the square root, then यहां से जब बाहर आएगा तब IM स्क्वायर होके आएगा, बराबर, और उधर से भी स्क्वायर रूट होके आएगा तो सिर्फ IM बचेगा। So in the first bracket only thing that remains is R square plus क्या बचा? XC minus XL and its square। यहाँ पर क्या है? VM। तो VM by IM equals to this thing
आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल स्क्वायर। तो v by I equals to R. Does this resemble this thing जो हमें पता है v by I equals to R ओम्स लॉ में जो नॉर्मल डीसी सर्किट होती है उसके अंदर लेते हैं वो। तो what was this? This was resistance of the circuit, बराबर ना। तो ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर भी ये पूरी चीज है वो रेजिस्टेंस की तरह रोल प्ले कर रही होगी, बराबर। सो द एंटायर दिस टर्म इज रेजिस्टेंस फॉर द गिवन सर्किट। And now we will not call this as resistance because इसमें reactance भी है, resistance, capacitive reactance, inductive reactance, ये सारे terms है, इसलिए इनका एक अलग से नाम दे दिया जिसका नाम है impedance, बराबर। तो इनके बदले मैं लिख दूं कोई एक वेक्टर है, वो वेक्टर का नाम यहां पर z लिख दूं, बराबर z। तो z का मोड लेंगे, मोड z, ये आ गया। कोई भी वेक्टर होता है तो वेक्टर में हम लोग क्या लेते हैं, उसके x कंपोनेंट्स का स्क्वायर, y कंपोनेंट स्क्वायर एंड इट्स रूट लेते हैं। तो वही चीज की है, x कंपोनेंट स्क्वायर, y कंपोनेंट स्क्वायर, टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट स्क्वायर एंड इट्स रूट लिया है, वही हमें यहां पर मिल गया, मोड z। क्लियर। z का नाम क्या, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस, यूनिट इज ओम। रेजिस्टेंस जैसा ही काम करता है ना, तो यूनिट आ गया इसका ओम। ये सबका भी रेजिस्टर यूनिट ओम 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 है, बराबर। तो ऑब्वियसली ये क्वांटिटी का भी ओम ही आएगा। तो एंटायरली मुझे जब आई एम के लिए फॉर्मूला लिखना होगा, आई एम क्या हो जाएगा यहां पर इसके ऊपर से, तो आई एम इक्वल्स टू वी एम बाय अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वेयर। क्लियर। दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। Suppose you are taking RMS value over here, then you will get RMS value of current, बराबर। IRMS, if you want to find out, take the RMS value of potential also, R square plus XC minus XL square, बराबर, ठीक है। तो जैसे प्रीवियस केस के अंदर, प्रीवियस 3 केसेस के अंदर, प्रीवियस 2 लेक्चर्स के 3 केसेस के अंदर हमने फर्स्ट के लिए क्या डिराइव किया था, कुछ ऐसा फॉर्मूला डिराइव किया था। रेजिस्टिव के लिए, फॉर रेजिस्टिव सर्किट इट वाज आई एम इक्वल्स टू वी एम बाय आर। फॉर कैपेसिटिव सर्किट इट वाज वी एम बाय एक्सी। For inductive circuit, it was Vm by XL. Now see, if there is just resistance in the circuit, सिर्फ resistance है, ये दोनों absent है उसमें, L and C are absent. L and C are absent, तो क्या ये दोनों terms आएंगे? No, ये नहीं आएगा। R square and its root, R square and its root मतलब R बचा, तो Vm by R ही आ गया। Clear? कैपेसिटर खाली है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, देन यू शुड हाइड दीज टू टर्म्स। एक्सी का स्क्वायर बचेगा खाली एंड इट्स रूट, तो एक्सी बचेगा, वैसे ही आ गया एक्स वी एम अपॉन एक्सी। और अगर इंडक्टिव सर्किट है तो वी एम बाय एक्स एल सिर्फ बचेगा। क्लियर। तो जो हम लोगों ने उधर देखा था उसका ये जनरलाइज्ड इक्वेशन हो गया। इस जनरलाइज्ड इक्वेशन के ऊपर से आप ये डिराइव कर सकते हो, बराबर। बट सबसे पहले हमने सिंपल वाली सर्किट्स ली थी, उसके बाद कॉम्प्लेक्स जिसमें तीनों कंपोनेंट्स आ जाए वैसा हम लोगों ने प्लॉट किया। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। अब हम लोग आई को थोड़ी देर के लिए भूल गए थे कि आई भी इसी लाइन में चल रहा है, और यहां पर हमें V जो है Z, ये जो है रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट हमें कहां पर मिला, Z। रिजल्टेंट हमें I से कुछ एंगल पर मिला, तो वो एंगल हम लोग कुछ फाई एंगल बोल सकते हैं।
अगर उसको मैं अलग से डायग्राम प्लॉट करूं तो देखो राइट एंगल की टू साइड्स, अब इसमें मैं ये रिजल्टेंट है ना, यहाँ पर ये सारे वी 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 है, ये वी का रिजल्टेंट आएगा, वी रिजल्टेंट, और उसी का जो उस टाइम पे रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस ये चीज आई, बराबर ना। तो सेम यहाँ पर रेजिस्टेंस, सेम यहाँ पर इंडक्टिव और कैपेसिटिव एक्सी एक्सएल, जैसे वीसी माइनस वीएल है ना, वैसे ही यहाँ पर मैं एक्सी माइनस एक्सएल लिख सकती हूँ, और ये वाला जो है वो अदर साइड, तो यहाँ पर मैं आर लिख सकती हूँ, और ये जो आया वो जेड आया। सिंपली इसके ऊपर से भी समझ सकते हो, सी जेड इक्वल्स टू वॉट, जेड इक्वल्स टू आर स्क्वेयर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल एंड इट्स स्क्वेयर एंड इट्स रूट, तो यहाँ पर मैं जेड स्क्वेयर बोल दूं। तो ये देख सकते हो आप, टू साइड्स और उनका स्क्वायर करके एडिशन, तो जेड स्क्वायर बनता है। सो कैन आई रिप्रेजेंट दीज टू एज टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो रिप्रेजेंट कर दिया, रिजल्टेंट क्या मिलेगा, जेड मिलेगा। क्लियर। नाउ रिजल्टेंट जो है वो रिजल्टेंट ने आई के साथ ये वाला यहाँ पर फाई जितना एंगल बनाए, तो वो फाई एंगल यहाँ पर बनेगा, ठीक है। आर वाला जो है उसके साथ रिजल्टेंट ने, आर वाला है उसके साथ रिजल्टेंट ने फाई एंगल बनाया। सो फ्रॉम दिस डायग्राम tan phi, दिस इज एक्चुअली व्हाट आई, और ये रिजल्टेंट भी, तो V एंड I के बीच कितना एंगल, उसको हम लोग उनके बीच का फेज डिफरेंस बोलते थे, बराबर। रेजिस्टिव सर्किट थी तो दोनों एक ही लाइन में आए, इसलिए हमने बोला था कि इन केस ऑफ रेजिस्टिव सर्किट करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज विथ ईच अदर। कैपेसिटिव सर्किट के लिए π/2 जितना फेज डिफरेंस बताया था, इसमें भी π/2 जितना फेज डिफरेंस बताया था, लीडिंग एंड लैगिंग करके, लैग्स बाय π/2, लीड्स बाय π/2। तो यहां पर क्या है, आई आगे चला गया, वी यहां पर है, तो ये इतना फाई जितना डिफरेंस आया इनके बीच में, बराबर। तो वो फाई कितना है वो अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है वीसी वीआर वीएल के वैल्यू के ऊपर। तो tan phi from this triangle is equals to xc minus xl upon r, opposite upon adjacent. So this is how you can also find out what is the phase difference for this LCR series circuit. ये जो एंगल है उसमें आपको ये पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू मिल सकती है, XC XL की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, whether XC is greater than XL और XL is greater than XC। तो उस हिसाब से यहाँ पर ये जो डिफरेंस है ना, अभी मैंने क्या लिया, VC ग्रेटर है VL स्मॉलर है, तो इसलिए डिफरेंस यहाँ पर आया। अदरवाइज कहाँ पर आता, इस तरफ आता कि नहीं, इफ VL is larger और VC स्मॉलर, तो रिजल्ट कहाँ पर आता, इधर आता, तो रिजल्ट इधर आता। तो फिर फाइनल रिजल्टेंट कहाँ पर ड्रॉ करते, हम लोग ऐसे ड्रॉ करते कि नहीं, यहाँ पर इसके पैरेलल ये ले लिया, तो रिजल्टेंट ऐसे आता। तो फिर फाई का आई के साथ जो एंगल बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा, बराबर। तो डिपेंड करता है एक्सी और एक्सएल की वैल्यू के ऊपर। तो दिस फॉर्मूला आल्सो यू शुड रिमेंबर टू फाइंड आउट द फेज डिफरेंस बिटवीन V and I. This is what phase difference between V and I, voltage एंड करंट थ्रू द सर्किट, ठीक है। तो ये फेजर डायग्राम की मेथड हो गई जिसके थ्रू हमने IM करंट कितना पास हो रहा होगा ये डिराइव किया। चलो नोट करो इसे। नाउ लेट अस लुक एट द सेकंड मेथड ऑफ डिराइविंग द फॉर्मूला फॉर I, एनालिटिकल मेथड। सेकंड इज एनालिटिकल मेथड। So we have the formula V equals to VL plus VC plus VR. VL is L di by dt, VC is Q by C, and VR is IR. Now the equation we want to find out I कितना है उसका फॉर्मूला डिराइव करना है। तो पहले हम लोग इंडिविजुअली ये I और Q दोनों के फॉर्म में है, तो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट
द आई, ऑल द आईज इन द फॉर्म ऑफ क्यू। फिर लास्ट में हमें आई का फॉर्मूला जो है वो डिराइव होके मिलेगा क्यू के फॉर्मूला के ऊपर से ही। सो हियर क्यू इक्वल्स टू क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, देन आई इक्वल्स टू dq by dt, that is qm sin, साइन का हो जाएगा cos ओमेगा टी, cos ओमेगा टी प्लस थीटा, और ये जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट में से जिस टर्म के साथ t है वो आएगा उसका डिफरेंशिएशन। सो सपोज यू हैव 2t, then its differentiation will be 2. So here you have omega t, so that's its differentiation will be omega, qm omega cos omega t plus theta. Then di by dt is also there, so you have to again differentiate this, d square q by dt square, so that will be qm omega, differentiation of cos will be minus sin omega t plus theta, एंड ये ब्रैकेट का क्या हो जाएगा ओमेगा टी का अगेन ओमेगा, तो यहां पर स्क्वायर लगा दिया। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द इक्वेशन 1 2 3 2 3 and 4 into 1, substituting equation 2 3 and 4 in 1, we have v equals to actually what, Vm sin omega t equals to L di by dt is minus Qm omega square sin omega t plus theta, then Q by C plus Q is Qm by C sin omega t plus theta, and plus I is Qm omega cos omega t plus theta equals to qm is there, that we can take out as common, omega we can take out as common, here omega is not there, so we will also take that also as common और फिर यहाँ पर divide कर देंगे। तो taking qm and omega as constants, यहाँ पर क्या बचा, फर्स्ट टर्म में माइनस एल ओमेगा, एक ओमेगा बचा और एक एल, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस क्यूएम बाय ओमेगा सी, omega was not there with this term, then also we have taken out omega is common, इसलिए यहाँ पर डिवाइड कर दिया, qm तो हमने कॉमन ले लिया है, तो 1 अपॉन ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा एंड प्लस क्यूएम एंड ओमेगा दोनों निकल गए हैं, तो क्या बचा सिर्फ कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, राइट। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके यहां पर लिखते हैं हम कि क्यूएम एंड ओमेगा, फिर फर्स्ट ये कॉस वाला टर्म है उसको सबसे आगे लिख लेते हैं, कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस इन दोनों में से साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, कैन वी टेक दिस टर्म एज कॉमन, बराबर कॉमन ले लेते हैं उसको, तो बचेगा क्या 1 अपॉन ओमेगा सी एंड माइनस ओमेगा एल साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, क्लियर। तो क्यूएम ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, क्यूएम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी इज एक्सी, ओमेगा एल इज एक्सएल, रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, then after multiplying and dividing by Z impedance, multiplying and dividing by Z, so that will be QM
omega into z divide and z will go in the denominator. तो यहाँ पर r भी तो बचेगा, ये r है सेकेंड टर्म के थर्ड टर्म के अंदर i इंटू आर, तो यहाँ पर r आएगा, ये थर्ड टर्म के अंदर r भी बच जाएगा, बराबर। थर्ड टर्म के अंदर यहाँ पर r भी बचेगा, r, राइट। तो r बाय जेड कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस एक्सी माइनस एक्सएल बाय जेड इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इक्वल्स टू क्यू एम ओमेगा जेड। आर बाय जेड अभी अभी हमने ड्रॉ किया था, यहाँ पर लिखा था हमने फाई और डेल्टा, यहाँ पर था एक्सी माइनस एक्सएल, यहाँ पर था आर एंड जेड वॉज द हाइपोटेनस, राइट। एक्सी माइनस एक्सएल रिजल्टेंट ऑफ टू रिएक्टेंसेस, कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, उसको एक साइड से रिप्रेजेंट किया था। तो बोथ आर मेकिंग altitude and base of a right angle triangle. So whatever is the resultant, whatever is the hypotenuse, that will give us the value of impedance. So R by Z adjacent upon hypotenuse, that will give me cos theta. Can I say this is cos theta? Cos phi into cos omega t plus theta is there, बराबर, plus xc minus xl upon z, that is opposite upon hypotenuse, phi की opposite side और ये hypotenuse, opposite upon hypotenuse is sin phi sin omega t plus theta. Now we have cos alpha cos beta as cos alpha cos beta, ये कुछ इसके जैसी बन रही है, इक्वल्स टू कॉस अल्फा माइनस बीटा, बराबर। कॉस के साथ जो एंगल वही यहाँ पर साइन के साथ एंगल, कॉस के साथ जो दूसरा एंगल वही यहाँ साइन के साथ एंगल, और दोनों के बीच साइन कौन सी? माइनस साइन। देन द आंसर विल बी, इट इज एक्चुअली द एक्सपेंशन ऑफ ये, बराबर, आइडेंटिटी है कॉस अल्फा माइनस बीटा। So here we can write qm omega z cos alpha. This can be treated as alpha, बराबर, इसको अल्फा बोल सकते हैं हम लोग, इसको बीटा बोल सकते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा फाई माइनस ओमेगा टी माइनस थीटा, बराबर, ये बन गया। तो qm माइनस साइन अगर इसमें से हम लोग कॉमन ले ले तो कॉस फाई को अलग से, और ये फाई माइनस थीटा और ये माइनस ओमेगा, फाई माइनस थीटा माइनस ओमेगा टी, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लोग। In place of phi minus theta, if we write pi by 2 minus omega t, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बचेगा? qm ओमेगा z cos pi by 2 की टेंडेंसी क्या? जो cos या sin ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको चेंज कर देने का। तो cos and pi by 2 will now be called as sin omega t। ये किसके लिए फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं? ये है v के लिए, बराबर। तो ये v आ गया, v इक्वल्स टू qm ओमेगा z sin ओमेगा t। नाउ v बाय ये पूरा जो टर्म है वो पूरे टर्म में ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई इसकी, या तो हम लोग v बाय z लिख दूं मैं यहाँ पर v बाय z, या v की जगह पर ये भी लिख सकते हैं vm साइन ओमेगा t इक्वल्स टू qm ओमेगा z साइन ओमेगा t। साइन ओमेगा t विल गेट कैंसल्ड आउट,
So Vm will be equals to Qm ओमेगा Z, बराबर। ये फॉर्मूला आया Vm के लिए। नाउ V by Z is Vm by Z is Qm into ओमेगा, इतना बचेगा Vm अपॉन Z। बट V बाय Z तो क्या होता है, I की वैल्यू होती है V बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या है, इम्पिडेंस, इम्पिडेंस, तो Vm बाय इम्पिडेंस इक्वल्स टू ओमेगा इंटू Qm, ठीक है। सो वी कैन कॉल दिस एज Im, so I equals to Im sin omega t, I equals to Im sin omega t, where Im equals to Vm by Z. Q was what? Q equals to Qm sin omega t plus theta. So from this I equals to dq by dt. dq by dt is Qm into omega, साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा टी प्लस थीटा, बराबर। आई के लिए ये फॉर्मूला, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे इसके बदले आई एम मतलब ये आ गया आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस, ठीक है। तो ये पूरा जो हो गया वो हमने आई का फॉर्मूला लाने के लिए ही किया, ठीक है ना। हर एक जो केस था रेजिस्टिव, कैपेसिटिव या इंडक्टिव, वो सर्किट्स के लिए केसेस थे, सबके अंदर हमने क्या किया था, अल्टीमेटली वी वांट टू फाइंड आउट हाउ मच विल बी द करंट दैट इज पासिंग एट एवरी इंस्टेंट। कोई भी एक इंस्टेंट ले लो, कितना करंट पास हो रहा होगा एसी सर्किट के अंदर, वो हम फाइंड कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला डिराइव करना था, तो हमने ये फॉर्मूला जो है वो उसके लिए डिराइव कर दिया। दैट डिपेंड्स अपॉन द फेज डिफरेंस, ये फेज इनिशियल फेज कितना होगा ना, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। चलो, तो ये फेजर मेथड है, वो भी आप लिख, एनालिटिकल मेथड है, एनालिटिकल मेथड लिखो।